Hello and welcome to GSLC Spark DuX 2026. I am Minal Masi from Shikhar Educational Tourism, and we have a very distinguished guest with us today, Dr. Dilip Modi. He is the founder chairman of Modi World School, Junjunu, and we are very proud to have Sir with us for our podcast. Namaste, sir, and Namaste. welcome. Namaste. So you had been into education for about 4 decades now, Right. and it's very impressive, sir. We thank you for the services, of course. And with that, I would like to say that we are very thankful to the government also that, with the National Education Policy 2020, there had been a lot of changes in the education system. And how well are the schools accepting it? And what do you think about the effectiveness? See, when the new education policy was being framed, the rules and everything was being prepared, I had been the part of that policy decisions, and we had a number of meetings and we had sent our suggestions, mails, and being the stakeholders. And I am the state head of National Association of Private Schools. This is the NISA. It's a NISA, Okay. National Independent Schools Alliance. So, through that organization, we had been the part of when the national education policy was being framed. A lot of suggestions from our side was incorporated in the new education policy, and the policy document as a such, it's very, very good. Fine. No, there is no doubt about it. A lot of work has been done, and but see, the document on the policy doesn't work in itself. When it comes to the implementation, Absolutely. when it has to be brought into the field, Mm-hmm. there the question comes. Yes. Because India being the democratic country, and the education is in concurrent list. So central government has got its own policies, and all the state governments have their own policies. True. All the state governments are being controlling the education system. They are. This is a policy, means suggestive policy. It cannot be forced. So wherever there are no BJP governments, because right now at the center there is a BJP government, Right. NEP is being brought by BJP government, Right. but there are various states where BJP government is not in the rule. They are not ruling the states. So they are not cooperating in this NEP. One thing, and another thing is till today, lot many things should have been done, but we don't see anything in the field. Though the implementation side is very weak. First of all, NEP says that the budget allocation in school education should be around 6% of the total GDP, Right. but it is below 2.9 at present. So that is a pathetic situation. Unless and until you provide some budget, no policy will work. And the situation at the ground level is very much pathetic. And the infrastructure facilities at ground level, rural areas, Ji. government schools especially, is not up to the mark. So we can say that policy in itself is good, but implementation is very poor. A lot of things have to be done in this. Right. So thank you for that. So with this, as you said, wherever the BJP government is, it's helping. But the other states, it's a lot of work. It needs to be done for that. In your own school, what are the top 3 changes that came in with the national education policy? Not much as such, because न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा मैंने बताया कि फील्ड में अभी उसका कोई जी। इम्पैक्ट आ नहीं रहा है, जी जी कहीं पर भी कुछ नहीं है. जी. ये मेयरली चेंजिंग दी क्लास स्ट्रक्चर, कि आपने पहले 10+2+3 था, उसको आपने चेंज करके वो जो चेंज कर दिया, 5+3+3+4. इट डज नॉट मैटर मच. इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है. जी. और जो सिलेबस चेंज होना है या पॉलिसी चेंज होनी है, वो ग्राउंड लेवल पर कहीं भी नहीं है. हमारा जो मेजर हमने इसमें कहा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, इन दो के बीच बहुत बड़ा डिवाइड है. पॉलिसीज जो बनती है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को ध्यान में रख करके बनती है. और क्या होता है कि हम लोग जिसको कहते हैं निशा में, गॉड, जनरेटर
ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये सब गवर्नमेंट खुद है। वो गवर्नमेंट स्कूलों को भी वही मॉनिटर करते हैं जी, और प्राइवेट स्कूलों को भी वही मॉनिटर करते हैं। तो दे आर बायस्ड विद द गवर्नमेंट स्कूल। जो पॉलिसी बनती है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बनती है, जी, और वो चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो प्राइवेट स्कूलों में तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं होता है। सेम वैसे जो जी। RTE की बात है, राइट टू एजुकेशन, एक बहुत जी। बड़ा एक्ट चल रहा था। जी, जी, तो राइट टू एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर प्राइवेट स्कूल्स, दैट इज फॉर द duty of imparting the good education, quality education is with the government. Government is supposed to give good quality education to each and everyone, children below 14 years. लेकिन गवर्नमेंट नहीं देती, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। बिल्कुल। अब उनको वो स्कूल्स और वो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आके हमें इंस्पेक्ट करते हैं जिनकी खुद की स्कूलों में कुछ नहीं है, जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, जहाँ पे चार दीवारी नहीं है, जहाँ छत नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है। I would like to just add this. हमने जो I am from शिखर एजुकेशनल टूरिज्म, हमने पॉलिसी को बहुत सीरियसली पढ़ा, बहुत सीरियसली लिया, और हमने स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एंड वी आर नॉट फोकसिंग जस्ट ऑन प्राइवेट स्कूल्स, हम गवर्नमेंट स्कूल्स की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लर्निंग, राइट टू एजुकेशन सबके पास है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर एवरीवन? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जो चेंज हुआ है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, AI, ChatGPT, Gemini, रोबोटिक्स और ये सब जो आया है, उसमें एजुकेशन पूरी तरह से चेंज हो गया है। जी, अब जो इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करना, इंफॉर्मेशन देना, डाटा सिखाना, वो अब इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो एनीबडी कैन गैदर फ्रॉम एनीवेयर। जी, अब जो आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, जो कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है स्टूडेंट की, और उसको जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझना और उसको सॉल्व करना, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग और ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, जी, इस पे ही फोकस करना होता है। जी, क्योंकि आजकल के ज़माने में आपका जनरल नॉलेज कितना है, आपको कितना कोई चीज़ कितना मेमोराइज कर सकते हैं, उसका तो कोई इम्पोर्टेंस रहा ही नहीं। विद अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन। राइट, बड़े से बड़े डेटा कैलकुलेशन आप एक बटन के क्लिक के साथ कर सकते हो। सो दैट इज नो मोर रिक्वायर्ड। मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। आजकल क्रिटिकल थिंकिंग और 21st सेंचुरी स्किल्स की जितनी भी चीज़ें हैं, विच इंक्लूड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जी, लर्निंग ऑनगोइंग प्रोसेस है, जी, वो सिलेबस से बंधा हुआ नहीं है। जी, इट्स मच मोर बियॉन्ड सिलेबस। जी। तो सिलेबस से बाहर निकलना होगा और तभी एक्चुअल लर्निंग होगी। हमें बाउंड्रीज हटानी होंगी और हमें बच्चों को बाहर लेके जाना से होगा। बाहर आना होगा। क्लासरूम की चार दीवारी में बच्चा अब टिकने वाला नहीं है। नया सिस्टम जो आ गया है, अब बच्चा तो घर पर ही पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ लेता है। उसको जो कुछ भी टीचर से पढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ें उसको ऑनलाइन मिल जाती है। ChatGPT से, जेमिनाई से, वो उससे ज़्यादा जानता है। आजकल बच्चा टीचर से ज़्यादा जानता है। तो उसको स्कूल में वो अट्रैक्शन नहीं है। जी, स्कूल वो नहीं दे पा रहे हैं जो उसको बच्चे को चाहिए। उसकी क्यूरियोसिटी, उसका वो जो एंग्शियस है, वो जो 4 कदम आगे सोचता है, वो उसको स्कूल में फुलफिल ही नहीं हो रहा है। सर, व्हाट वुड यू एडवाइस टू अदर स्कूल्स व्हेन दे प्लान फॉर देयर एजुकेशनल टूर्स? एजुकेशनल टूर्स, जी, एजुकेशनल टूर तो मस्ट बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम। एवरी क्लास, not only once in a year but multiple times in a year, they should be going for the tours, nearby places पे जाए। इसमें मैं कहूँगा भी सबसे पहले तो know your own place, right? सबसे पहले अपना टाउन, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, पहले उसको जानो। फिर उसके बाद में इंडिया, बहुत बड़ा इंडिया है जी, उसका टूर करो। देन गो टू दी वर्ल्ड टूर, एब्सोल्युटली, दुनिया में जाइए। लेकिन सबसे पहले अपना अड़ोस पड़ोस वो जानो, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो योर ज्योग्राफी, आपके यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, क्या आपकी आर्ट एंड कल्चर क्या है, जी, आपके यहाँ क्या लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको ही सॉल्व करके आप जी सकते हो। राइट सर। आज आप कितना भी इंटेलिजेंट हो जाओ, कितने भी मार्क्स ले आओ, डिग्री ले आओ, सर्टिफिकेट ले आओ, नो वैल्यू। So with that piece of advice, thank you so much for your time. We appreciate it, and we थैंक यू मितू, thank you, sir. थैंक यू।